السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم ایک ایسی مقدس ہستی کا ذکر کریں گے جن کا نام صبر کی علامت بن گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے ذلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اس واقعے کی تصدیق ہمیں تفسیر ابن کثیر، قصص الانبیاء اور تاریخ طبری جیسی معتبر کتابوں میں ملتی ہے۔ آپ کی آزمائش اور استقامت کی داستان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو شام کے علاقے حوران میں مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ نعمتوں اور دنیاوی مال و متاع سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس وسیع زمینیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، گائے، بیل اور کثیر تعداد میں غلام موجود تھے۔ آپ کی سخاوت اور دریادلی کا شہر پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس دور میں جب آپ کی ولادت ہوئی تھی تو فضاؤں میں برکت اور رحمت کی ایک خاص لہر دوڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے وقت فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، گواہ رہو کہ میرا یہ بندہ دنیا میں صبر اور شکر کی بہترین مثال بنے گا۔ آپ کی پیدائش کا زمانہ نہایت ہی پرامن اور خوشحالی کا زمانہ تھا۔ آپ کی اہلیہ کا نام حضرت رحمت یا رحیمہ بنت افرایم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ روایت کے مطابق آپ کی بیویوں کی تعداد اور ان کے وفادار ہونے کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ کی اولاد میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں شامل تھیں، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اللہ نے آپ کو ہر طرف سے کامل اور مکمل نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی ملکیت میں موجود تمام دولت کو آپ اللہ کی امانت تصور کرتے تھے اور یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ آپ کی اسی بندگی اور شکر گزاری کو دیکھ کر ابلیس شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے اللہ سے ایک درخواست کی، جہاں سے آپ کی آزمائش کی ابتدا ہوئی۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، ایوب تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے دولت اور راحتوں سے نوازا ہے۔ اگر تو اس سے یہ نعمتیں چھین لے تو وہ تیرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ اس کا بندہ ہر حال میں وفادار رہتا ہے۔ پھر اچانک آفتوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سب سے پہلے آپ کی تمام جائیداد اور مویشیوں پر گاز گری۔ ایک کے بعد ایک خادم آ کر خبر دینے لگے کہ چراگاہوں میں آگ لگ گئی، اونٹوں کو دشمن لوٹ لے گئے اور تمام مویشی ہلاک ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ساری دولت خاک میں مل گئی اور آپ دنیاوی اعتبار سے تنگ دست ہو گئے۔ لیکن اس عظیم نقصان کے باوجود آپ کی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی۔ اس آزمائش کے دوران آپ نے نہایت سکون سے فرمایا کہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ ہی نے لے لیا، میں تو صرف ایک امانت دار تھا۔ آپ نے زمین پر سجدہ کیا اور اپنے رب کی حمد بیان کی۔ شیطان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تباہی کے بعد بھی ایوب کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اور وہ عبادت میں پہلے سے بھی زیادہ مشغول ہو گئے۔ اس وقت جب آپ کے مال و دولت کے چھن جانے کا مرحلہ پیش آیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا اور آپ کی زبان پر ایسے الفاظ جاری فرمائے جو آج بھی صبر کرنے والوں کے لیے سہارا ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو میرا بندہ ایوب، جس کا مال خاک ہو گیا لیکن اس کا یقین ابھی بھی میری ذات پر پہلے جیسا مضبوط ہے۔ یہ آزمائش کا صرف پہلا قدم تھا۔ مال و دولت کے جانے کے بعد شیطان نے ہار نہیں مانی اور اس نے آپ کی اولاد پر وار کرنے کی ٹھانی۔ ایک روز جب آپ کے تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں، 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ایک مکان میں جمع تھے تو اچانک ایک شدید زلزلہ آیا اور وہ پوری عمارت ان پر گر پڑی۔ اس المناک حادثے میں آپ کی تمام اولاد مقام شہادت پا گئی اور کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی
कि आपकी आंखों के तारे और बुढ़ापे के सहारे अब इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन आपने अपनी जुबान से कोई भी ऐसा कलमा नहीं निकाला जो अल्लाह की रजा के खिलाफ हो। आपने फरमाया कि ऐ मेरे मालिक, तूने ही ये औलाद अता की थी और तूने ही अपनी अमानत वापस ले ली, मैं तेरी हर रजा में राजी हूं। उस दौर में जब आपकी इन औलादों की विलादत हुई थी तो फिजाएं खुशियों से महक उठी थी और हर तरफ रहमतों का नजूल हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पैदाइश के वक्त फरिश्तों से फरमाया था कि ये बच्चे अय्यूब के घर की रौनक हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब मैं इनके जरिए अपने नबी के सब्र का इम्तिहान लूंगा। आपने इस अजीम सदमे को भी निहायत इस्तकामत से बर्दाश्त किया। आपकी अहलिया हजरत रहमत इस गम से निढाल हो गईं, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और सब्र की तलकीन की। शैतान ये देखकर दंग रह गया कि माल गया, औलाद गई, लेकिन अय्यूब की बंदगी और जिक्र इलाही में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। अब शैतान ने आखिरी और सबसे सख्त वार के तौर पर आपकी अपनी सेहत पर हमला करने का इरादा किया। अल्लाह ताला की मर्जी से अब आजमाइश का तीसरा और सबसे आजमाइशी मरहला शुरू हुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर छाले और जख्म जाहिर होने लगे। रिवायत में आता है कि आपके सर से लेकर पांव तक कोई हिस्सा महफूज न रहा, सिवाय आपके दिल और जुबान के। इस बीमारी की वजह से आपके जिस्म में शदीद तकलीफ होने लगी और लोगों ने आपसे किनारा करना शुरू कर दिया। जब आपकी बीमारी तूल पकड़ गई तो बस्ती के लोगों ने आपको शहर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वो नबी जो कल तक लोगों का सहारा था, आज तन्हाई में एक झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन सुभान अल्लाह, इस हाल में भी आपकी जुबान सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के विर्द से खाली नहीं रहती थी। आपने कभी अपनी तकलीफ की शिकायत अल्लाह से नहीं की। उस दौर में जब आप सेहतमंद थे और आपकी विलादत के बाद अल्लाह ने आपको कुव्वत अता की थी, तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए अय्यूब, मैंने तुम्हें बेहतरीन जिस्म और रूह अता की है। अल्लाह ने आपकी पैदाइश के वक्त ही ये जाहिर कर दिया था कि आपका जिस्म इबादत के लिए मखसूस है। बीमारी के इन सख्त दिनों में भी आपने यही साबित किया कि आपकी रूह अपने रब के साथ जुड़ी हुई है। हजरत रहमत रहीमा इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ साए की तरह रहीं। वो लोगों के घरों में काम करके आपके लिए खाने का इंतजाम करती थीं। शैतान ने उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन हजरत रहमत ने शैतान को झिड़क दिया और अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। ये आजमाइश कई बरसों तक जारी रही और फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की रहमत ने जोश। अल्लाह के हुक्म से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का सिलसिला जारी रहा और आप निहायत सब्र के साथ उस झोपड़ी में दिन गुजारते रहे। आपकी बीमारी इस कदर बढ़ गई थी कि आपके जिस्म के जख्मों में कीड़े तक पड़ गए थे, लेकिन जब भी कोई कीड़ा आपके जिस्म से गिरता तो आप उसे वापस उठाकर जख्म पर रख देते और फरमाते कि अल्लाह ने तेरा रिज़्क मेरे जिस्म में रखा है, तू अपना रिज़्क खा। उस दौर में जब आप इस शदीद बीमारी में मुब्तला थे तो आसमान से फरिश्ते आपकी इबादत और सब्र को देखकर रश्क करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया था कि देखो मेरे अय्यूब को मैंने उससे सब कुछ ले लिया, लेकिन उसने मेरा जिक्र करना नहीं छोड़ा। आपकी जुबान और दिल हर लम्हा अल्लाह की याद में मसरूफ रहते थे और यही आपकी सबसे बड़ी तवानाई थी। आपकी वफादार अहलिया हजरत रहमत रहीमा रोजाना शहर जाकर लोगों की मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें काम न मिला और उन्होंने अपने सर के बाल बेचकर खाना खरीदा। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने निहायत आजीजी से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। आपने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ महज एक शिकायत नहीं बल्कि अपनी आजीजी का इजहार था। अल्लाह को अपने नबी की ये पुकार इतनी पसंद आई कि फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जमीन पर जाएं और मेरे बंदे की मुश्किल को आसान करें। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ऐ अय्यूब,
अपना पांव जमीन पर मारो। जैसे ही आपने अपना कदम जमीन पर मारा, वहां से एक ठंडा और मीठा चश्मा उबल पड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए बेहतरीन मशरूब है। आपने उस पानी से गुस्ल किया और उसे पिया तो आपके जिस्म के तमाम जख्म और बीमारियां ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। अल्लाह ने उस वक्त आपकी सेहत की बहाली के साथ फरमाया था कि ए अय्यूब, तेरी आजमाइश मुकम्मल हुई और तूने सब्र का इम्तिहान जीत लिया। आपकी विलादत के वक्त जो नूर आपके चेहरे पर था वो दोबारा लौट आया और आप पहले से भी ज्यादा हसीन और जमील और तवाना हो गए। हजरत रहमत जब वापस आईं तो अपने शौहर को इस हाल में देखकर हैरान रह गईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ आपकी सेहत लौटाई बल्कि आपकी तमाम खोई हुई दौलत भी दोबारा अता फरमा दी। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आसमान से सोने की टिड्डियों की बारिश फरमाई और आपके तमाम वीरान बाग फिर से हरे भरे हो गए। आपकी जमीनें फिर से अनाज उगलने लगीं और आपके घर में फिर से खुशहाली का दौर लौट आया। सबसे बड़ी नेमत ये हुई कि अल्लाह ने आपको दोबारा औलाद अता फरमाई। रिवायत के मुताबिक आपकी उन तमाम औलादों को जो शहीद हो गई थीं, अल्लाह ने दोबारा जिंदगी बख्शी या उनके बदले उतनी ही और औलाद अता फरमाई। आपकी बेटियों और बेटों की तादाद पहले से भी बढ़ गई और आपका घर रौनक से भर गया। अल्लाह ने फरमाया था कि ये सब तुम्हारे सब्र का बदला है। अपनी सेहत और माल की वापसी के बाद आपने कई साल अल्लाह की इबादत और लोगों की हिदायत में गुजारे। आपने अपनी अहलिया हजरत रहमत की वफादारी की कदर की और उन्हें हमेशा इज्जत व एहतराम के मुकाम पर रखा। आपकी जिंदगी का हर लम्हा अब अल्लाह की शुक्रगुजारी में गुजरता था और आपने अपने बेटों और बेटियों को भी इसी राह पर चलने की वसीयत की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, अल्लाह की जात पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। यही वजह है कि आज भी जब दुनिया में सब्र की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है। जब आपकी उम्र मुबारक 140 साल के करीब पहुंची तो आपके विशाल का वक्त करीब आ गया। आपने अपनी तमाम औलाद को पास बुलाया और उन्हें अल्लाह की वहदानियत और दीन इब्राहिमी पर कायम रहने की सख्त ताकीद फरमाई। आपने अपनी वसीयत में गरीबों और यतीमों का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया, जो आपकी जिंदगी का हमेशा से खास हिस्सा रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का विशाल निहायत ही पुरसुकून हालत में हुआ। आपकी रूह मुकद्दस जब जिस्म से परवाज कर रही थी तो आपकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था।